हम करेंगे प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। ओके, सो हमने कल जो बनाए थे, ये क्या, ये कौन सा एक्सप्रेशन था ऊपर वाला? ये इनफिक्स था। तो इस इनफिक्स का पोस्ट फिक्स क्या है? ये है इसका पोस्ट फिक्स, है ना? है क्या नहीं? ये इनफिक्स का, ये पोस्ट फिक्स है। तो अगर ये इनफिक्स है, ये उसका पोस्ट फिक्स है। ये इनफिक्स है, तो ये उसका पोस्ट फिक्स है। और फिर यही इनफिक्स का हमने प्रीफिक्स भी कन्वर्ट किया था, राइट? ये उसका प्रीफिक्स है। ये क्या है उसका? प्रीफिक्स, है ना? तो कल अपन ने किया था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन और इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, है ना? यस और नो? आज हम करेंगे पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। क्या करेंगे? और प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। आज का एजेंडा क्या है? तो पहले तो इनफिक्स को कन्वर्ट करने का पोस्टफिक्स में, तो उसको इवैल्यूएट करने का। ठीक है। अब इस इनफिक्स का जो आंसर आएगा, वही आंसर इस पोस्टफिक्स का भी आना चाहिए, क्योंकि वो उसी का पोस्ट इनफिक्स का पोस्टफिक्स बनाया हमने, करेक्ट? तो अगर मैंने यहाँ पर ए को वैल्यू दिया 10, बी को वैल्यू दिया 20, सी को वैल्यू दिया 4 और डी को वैल्यू दिया 2 और ई को वैल्यू दिया 1, तो इसका आंसर क्या है? कैलकुलेटर दिखाओ करके, कैलकुलेटर क्या आंसर आएगा? हाँ, 37 आया सबको? हाँ, पूरा पूरा डालना कैलकुलेटर एक साथ पूरा। 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ए क्या है? ए इज 10। बी जहां जहां है वहां क्या डालो? 20। सी क्या डालो? 4। डी क्या डालो? 2। और ई क्या डालो? 1। आंसर क्या आएगा इसका? क्या है? 49 है? क्या बात है! बॉडमास के रूल से इसका आंसर क्या है? बॉडमास के रूल से बी ओ डी पहले होगा डिवाइड, तो 4/2 का आंसर क्या है? 2 का आंसर आया, ठीक है। फिर फिर आता है क्या? मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 20 कितना है? कितना हो गया? 40 फिर प्लस 10 कितना हो गया? 50 माइनस 1 क्या आंसर आ गया? आंसर आंसर क्या आना चाहिए इसका? इसका आंसर आ जाए 49, करेक्ट? यस और नो? तो 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। 2 इंटू 20 इज 40। 40 प्लस 10 is 50. 50 minus 1 is 49 is the answer. So if I evaluate this postfix, what answer should I get? I should get answer as 49, correct? And these are the values I will put for the variable. So for A, what will I put? 10. For B, 20. For C, 4, like this. And what will be the answer for this prefix also then?
49 because it is the same infix, no? Because this postfix is the equivalent for this infix, correct? So answer should be also equivalent. So now how to do this? Okay, let's check. So here we have to make three columns. First expression. First what? Expression, then stack, and then calculation. Okay. So how many columns we have to make? How many columns? What are they? What are the three columns? Expression, stack, and calculation. Okay. So how do we read the postfix expression from left to right or right to left? How do you read the postfix expression from left to right or right to left? Left to right. And how do you read a prefix expression from right to left? So postfix is read from left to right, and prefix is read from right to left. Okay. So now what will I read first? Will I read A or will I read minus? I'm doing this postfix evaluation. A. What is the value of A? What is the value of A? 10. 10 is operator or operand? Operand. Push the operand on the stack. Whenever you see operand push on the stack, what will we do? On the stack. So what does the stack? Ah, yes, correct. Very good. So next, what is there? Next, what is there? Next is B. No, B. I'm evaluating the postfix expression, not evaluating the infix. What are we evaluating? So first we took the infix, converted to, and then what are we evaluating? Postfix. So first, what will it read? A. What is the value of A? 10 is operator or operand. Go on the stack. Next, what is there? What is the value of B? 20 is operator or operand. Goes in the stack. Goes in the stack. Next, what is there? What is C? For the operator or operand? Goes in the stack. Next, what is there? Multiplication. Now, what you have to do? Remove the top two from the stack. What are they? Reverse their order. So 20 and 4 will become what? 4 and 20. Okay. So it is here 20 and 4, right? What will we do? Okay, or we'll take it as it is, I guess. We'll have to take it. देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ही ऑपरेटर आया तो क्या करने का, जो स्टैक के टॉप टू है उनको बाहर निकालने का। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, उनको रिवर्स कर देने का। तो क्या हो गया, और फिर ये जो ऑपरेटर है ये इसके बीच में डाल दो। तो आंसर क्या आया? 80 आंसर आया। यस और नो? तो 80 जो आंसर आया उसको पुश कर देने का। तो क्या आएगा? 10, 80। समझ में आ रहा है? जो हमने लास्ट टू निकाला था ना, लास्ट टू, तो उनका जो ये ऑपरेटर उनके बीच में डाला तो आंसर आया, उसको वापस पुश कर दिया आंसर को। ठीक है।
फिर नेक्स्ट कौन आया? यस, ये सब खेलते बैठने का, यस। नेक्स्ट कौन आया अभी? डी, डी क्या है? तो क्या करने का? 10, 80 और 2। सही है। फिर कौन आया? कौन आया? डिवाइड आया, ठीक है ना। डिवाइड, तो 80 और 2 क्या हो जाएंगे? नहीं नहीं, एक काम करो, इसमें एज इट इज है, एज इट इज, जैसे है वैसा। 20 और 4 ना, तो 20 और 4 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी माय करेक्शन। तो दो क्या थे? क्या थे? दो। 20 और 4 थे ना। वो एज इट इज बाहर निकलेंगे, 20 और 4 जैसे के है वैसा। तो क्या हो जाएगा इधर? 20 और 4, है ना। और फिर क्या क्या करेंगे अपन? उसके बीच में क्या डाल देंगे? 20 और 4 के बीच में साइन, साइन कौन सी आई है? आंसर क्या आया? वो पुश कर देंगे, ठीक है। 2 आया, 2 पुश हो गया। नेक्स्ट क्या आया? डिवाइड आया, तो क्या आएगा? 80 और 2 बाहर आ जाएंगे। साइन क्या है? ऑपरेटर क्या है? तो डिवाइड इसके बीच में आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? तो 40 किधर आएगा? 10, 40, ठीक है ना। जो पुश हो रहे हैं उनको अपन कैलकुलेट करके वापस पुश, वापस पॉप कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वापस पुश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन आया? प्लस आया, ठीक है। तो क्या करेंगे? दो बाहर निकलेंगे, कौन बाहर निकलेंगे? दो। ऑपरेटर कौन सा है? बीच में डाल दो, तो क्या आंसर आएगा? अब स्टैक, स्टैक में कुछ है क्या अभी? तो सिर्फ 50 आ जाएगा, है ना। सिर्फ 50 आ जाएगा। नेक्स्ट कौन आया? ई, ई क्या है? ये 1 है ना, तो क्या आ जाएगा? 50, 1 है ना। फिर नेक्स्ट कौन आया? तो क्या होगा अभी? तो क्या आएगा? माइनस आया ना। तो क्या आएगा? दोनों को बाहर निकालेंगे, 50 को और -1 को। क्या आंसर आया? वो पुश कर देंगे। ओवर हो गया। तो जो ओवर हो गया, फिर जो लास्ट में है वो आंसर है। जो लास्ट में है वो आंसर। सही है। आया समझ में? अब करते हैं प्री फिक्स इवेल्युएशन। क्या करते हैं अभी? तो पहले क्या रीड करेंगे? ई का वैल्यू क्या है? 1, 1 कहा जाएगा स्टैक में। फिर क्या रीड करेंगे? डी, डी, डी में क्या है? 2, तो 2 कहा जाएगा स्टैक में। फिर क्या आएगा? 4, तो 4 क्या कहा जाएगा? फिर कौन आएगा? 20, 20 कहा जाएगा, है ना। सही है। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट के दो कौन है? वो रिवर्स होके निकलेंगे, रिवर्स होके निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इस पे पूरा रिवर्स है। पढ़ते वक्त भी रिवर्स है, निकालते वक्त भी रिवर्स है, तो कैसे निकलेंगे? तो 420 क्या हो जाएंगे? जो 4 और 20 है वो क्या हो जाएंगे? 20 और 4। और बीच में क्या डाल देंगे उनके? तो क्या आंसर आएगा? तो क्या जाएगा स्टैक में अभी? 1, 2, 8। आ रहा समझ में? क्या बोला? सेम ही आंसर आना चाहिए, सेम ही आंसर आना चाहिए। ये प्रीफिक्स है, वो पोस्ट फिक्स है। आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फिर अगला, इसमें रिवर्स करना। अगला क्या है? डिवाइड, डिवाइड है, तो डिवाइड क्या करेगा? 2, 80 का, 80, 2। 80, 80 और 2 क्या डालेंगे बीच में उनके?
आंसर क्या आएगा? तो अभी स्टैक में क्या रहेगा फिर अभी? 1,40 सही है। फिर नेक्स्ट क्या ना आया? ए। तो ए क्या है? ए इज 10। तो क्या होगा? 1,40, 10 है ना? फिर नेक्स्ट कौन आया? प्लस प्लस। तो कौन बाहर निकलेंगे? 10 और 40 बाहर उल्टा होके निकलेंगे ना। 10 और 40 तो क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर आएगा इसके अंदर? 1,50 है। नेक्स्ट कौन आया? दोनों को बाहर निकालो उल्टा करके। 50 - 1 है ना? तो क्या आंसर आया? ओवर। जो ओवर जो लास्ट में वो आंसर है। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन। समझ में आया?